Morning, everyone, and good afternoon to our viewers who have joined us from India to be part of this unique initiative of the Indian Embassy. Under the India-Ireland Friendship Lecture Series, our today's topic is Art and Human Consciousness, and to enrich us on this subject, we have with us Mr. Parag Dinesh Borse, a well-known artist whose medium of expression is canvas. Mr. Borse is a renowned painter based in Karjat in the Indian state of Maharashtra. He did his BFA from Sir J.J. Institute of Applied Art, Mumbai in the year 2002. Mr. Borse mainly works with oil and soft pastel, and he has been working with this medium for past 17 years in his 20 years career as a professional artist. Mr. Borse does not believe in sticking to one style of expression and keeps his options open. This allows him the freedom to maximize his approach, enabling him to bring variety to the canvas, which is very well evident in his work. He has held several exhibitions and has multiple prestigious national and international awards to his credit. To mention a few, he is the first Indian artist whose work has been selected 3 times by Pastel Society of America for its 48th annual international exhibition, Enduring Brilliance, which was held in New York in 2020, and also the first Indian artist whose work has been awarded 2 times by Pastel Society of West Coast, California, USA in the year 2021. He also holds various art camps for the budding artists. Before I invite Mr. Borse to share his thoughts with us, I would request His Excellency, the Ambassador of India, to kindly give his introductory remarks. Namaskar. Thank you, Hemaji. At the outset, my very warm greetings from Dublin, Ireland to all friends in India and also in Ireland. I wish all of them a very happy New Year. And I must start by expressing our profuse thanks to Parag ji for kindly accepting our invitation to share his thoughts and his wisdom. And this is special because it's a very first lecture, special talk by an Indian in this year, 2023. So it's a great privilege for us to have such a dynamic, such a visionary, young, creative artist like Parag ji. For me, the theme of this event is also very significant because India and Ireland have had long-standing ties, and they were like the people of India got inspiration from Ireland's freedom struggle. Ireland's constitution has very tremendous, profound impact on our constitution. And also in the domain of art and culture, we have iconic friendship between Rabindranath Tagore and W.B. Yeats. Similarly, in literature and painting and music, there has been a lot of mutual inspiration. And as India is celebrating 75 years of our independence, and this year also marks 100 years of Ireland's independence. So at this historic milestone for both our countries, I'm very keen to revive that old traditional spirit of people-to-people friendship at the level of ideas. And art is very important for both our countries because Ireland has an extremely rich, extremely vibrant tradition of art. The natural beauty, natural setting itself is so picturesque, so stunning that we feel mesmerized every day. And also after 1973, when Ireland joined the European Union, then I think since then I can see a very perceptible change in the attitude of Irish people. There is a very palpable consciousness of a broader network. Not only Irish people are even young budding artists and scholars and researchers and scientists, so they are naturally very globally connected, globally conscious. So even I go to remote areas in Ireland and counties, small counties, but I meet young artists who are very conscious of what is happening all over the world. Not only the European art scene, cultural scene,
but also they are very much alive to what is happening in transatlantic countries, US and Canada, and also their strong ties with Australia and New Zealand. The Irish people are very naturally connected, globally conscious. So there is a lot for us to learn and mutually benefit by sharing and exchanging ideas. And on Indian side, we naturally have probably one of the world's richest heritage, and not only in terms of the tangible aspect of it, the intangible aspect of art is also extremely fascinating. Art in India has always been a deep, very integral part of overall culture, and in fact, it has a philosophical connotation. Art is three main elements of perception of reality, and then how do you experience, how do you digest what your senses absorb, and then based on your natural instinct, how do you create? And creation in India has always been given a kind of attribution of divinity, supreme power. So a real artist is a yogi. Real artist is like, there are parallels between the creation of the world by the Almighty and artistic creation by a very devoted artist. And in fact, in Sanskrit, there is a shloka which says, Sahitya Sangeet Kala Vihina Sakshat Pashu Puchya Vishanahina. Someone who is devoid of literature and music and art is like an animal, even if without horns and tail. In Indian thought process, Indian culture, Indian philosophy, being an artist means elevation of individual from a animal-like existence to a real human, elevated, conscious, upwardly mobile being. So I see there is a lot of parallels between our traditions, and I see huge merit in people-to-people connectivity in the field of art. And that is why we are very grateful to you, Parag, for accepting this invitation. And you are a kind of pillar in that part of India. So I look forward to not only listening to your presentation today, but also working together with you. If we can connect, we can create a kind of friendship group in India and friendship group in Ireland among artists who connect and share and probably host each other. That will be the big takeaway from today's program. With these words, I very warmly invite you, Parag, to share your thoughts. Thank you, Akhilesh ji. एक बात तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया मेरे विचार यहाँ पे व्यक्त करने के लिए, और मैं हेमा जी का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। तो द ऑनरेबल एम्बेसडर अखिलेश मिश्रा जी एंड सेक्रेटरी मिसेस हेमा शर्मा जी, आप लोगों को वापस एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे आगे मैं बढ़ता हूँ और अपने भारत के 75वें आजादी की जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके लिए आयरलैंड का जो 100 साल हो रहे हैं आजादी को, उसके लिए सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां देता हूं और मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। थोड़ा सा मेरा जो आर्ट एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस विषय पे मैं बोलने वाला हूं, उससे पहले मैं ये जो लेक्चर की सीरीज है जो आपने इनिशिएटिव लिया है और ये जो इवेंट चल रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम और बहुत ही अच्छी एक सोच है जो आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे बहुत ज्यादा मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बढ़ गई है जब मैं यहाँ पे बोलने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉट जस्ट एज एन इंडियन बट एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत में,
तो शायद उसका आज मैं एक प्रवक्ता के हिसाब से यहाँ पे बोलने आया हूँ। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, ये मैं आज समझ रहा हूँ, और उसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस तरह के फ्रेंडशिप के इवेंट्स अलग अलग देशों में हम होने चाहिए, हम करते भी है। लेकिन आज मैं जिस तरह से देख रहा हूँ चीजों की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी हम दो देशों के बीच की फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम ढूंढने जाए कहीं पे, तो देश तो हमें कहीं पे भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इंसान मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। और इसलिए इंसानों के बीच के फ्रेंडशिप की बात, मनुष्य के और मनुष्य के बीच की फ्रेंडशिप की बात मैं रखूंगा आज यहाँ पे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी रिलेशन, जो फ्रेंडशिप का रिलेशन हम डेवलप करना चाहते हैं, वहां पे हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि क्या चीजें हैं जो इंसान को इंसान से दूर करती है, इंसान को इंसान से सेपरेट करती है, किस वजह से हम जुड़ नहीं पाते एक दूसरे से, किस वजह से प्यार नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजों पे अगर हम ठीक से समझ लें, इसकी एक समझ बढ़ा लें, तो बहुत कुछ चेंज आएगा। और ये समझ इंसानों को ही अपने भीतर विकसित करनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें क्या है जो हमें सेपरेट करती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हम ये जो नाम है हमारे अलग अलग, जैसे इंडिया हो गया, आयरलैंड हो गया, या फिर कोई फ्रांस है, अमेरिका है, तो मुझे ऐसा लगता है ये नाम हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये वर्ड्स हमने यूज किए हैं। लेकिन इन शब्दों में हम कभी कभी हम साइकोलॉजिकली भी अटक जाते हैं। मतलब जो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकली कुछ कन्वीनियंट बातें होने के लिए, समझ बढ़ने के लिए ये नाम तो जरूरी है, लेकिन नाम मतलब वो चीज नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। और हम इन नामों में इस तरह से उलझ जाते हैं कि ये नाम ही हमें सेपरेशन की भावना निर्माण करते हैं बहुत बार, कि हम एक दूसरे से अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्वीनियंस की लेवल पे नामों की तरफ देखना चाहिए, लेकिन हम जो साइकोलॉजिकल हमारा जो होना है, वहां पे हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। मतलब एक तो ये लैंग्वेज का बैरियर है, जिस वजह से ऐसा साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग हो जाता है कि मैं इंडियन हूं और कोई फ्रेंच है, कोई अमेरिकन है। तो इस साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम तब तक हम एक दूसरे से मर्ज नहीं हो पाएंगे। एक सेपरेशन की भावना हमेशा बीच में रहेगी। इसी को लेकर आगे बढ़ता हूं कि हमारे बीच जो आइडेंटिटीज का जो मसला है, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंट्री के साथ, किसी रिलीजन के साथ, किसी कास्ट के साथ, या ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं एटसेट्रा कि जिनके साथ हम कनेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। उस वजह से भी ये सेपरेशन की भावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिर हम लोगों के अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, अलग अलग तरह का, और इन बिलीफ्स के वजह से भी बहुत ज्यादा सेपरेशन की भावना बढ़ती है कि ये मेरे बिलीफ से और ये उसके बिलीफ है। हम कितना भी चाहे एक दूसरे के बिलीफ्स को सम्मान दें, लेकिन ये सेपरेशन बना ही रहता है, हम एक नहीं हो पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिवाइड करने वाली चीजें हम लोगों को, अगर हम इनसे मुक्त हो सके, हम अगर अपने आइडेंटिटी से मुक्त हो सके, हम अपनी जो हमने मैं कौन हूं ये अगर हम जान सके, मैं विचार नहीं हूं, मतलब मैं अपने विचारों से अगर मुक्त हो सकूं, ये जो शब्द मैंने अपने भीतर पाले हैं इनसे अगर मैं मुक्त हो सकूं, तो शायद फिर मैं समझ सकूंगा कि क्या रियल लव है और क्या रियल फ्रेंडशिप हो सकती है। तो ये कुछ क्योंकि ये सब्जेक्ट, हम जिस फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट मेरा जो मेन सब्जेक्ट है आर्ट एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उससे बहुत जुड़ा है, बहुत उसके क्लोज है। इसीलिए मैंने कुछ बातें यहाँ पे साझा की। तो एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आर्ट और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये सब्जेक्ट आज मैंने जो चुना है यहाँ मेरा लेक्चर के लिए, तो इसकी कुछ वजह है, इसके पीछे कुछ रीजंस है ये सब्जेक्ट चुनने के पीछे। क्योंकि मैं
जिस तरह मैं दुनिया की तरफ देखता हूँ या ह्यूमन हिस्ट्री की तरफ देखता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी और किसी नाम पर, अलग अलग भगवान के नाम पर इंसान ने इंसान की जिस तरह हत्याएं की है, जिस तरह से वायलेंस किया है, वो शायद ही दूसरे किसी भी प्राणी ने, एनिमल ने, अपने ही जात के एनिमल को शायद कभी भी इतना किल नहीं किया होगा जितना इंसान ने इंसान को मारा है। तो ये जो वायलेंस है पूरा, तो ये वायलेंस जब मैं देखता हूं इसकी तरफ एज एन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, तो मुझे ऐसा दिखता है कि हम बहुत सेपरेट फील करते हैं एक दूसरे से, बहुत वायलेंट रहते हैं हमेशा, और कभी ना कभी हर दुनिया के कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्धजन्य परिस्थिति हमेशा बनी रहती है। तो और जैसे आज की अगर घड़ियां देखे, आज के इंसान की तरफ भी देखे, तो ऐसा लगता है कि कोई भी शांति के अवसर दिखाई नहीं देते, और कुछ आशा के किरण भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि ऐसा लगता है कि सेपरेट होने पे, मतलब ये समझ जो है सेपरेशन को तोड़ने की, ये इंसान आज तक डेवलप नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा आज का लेक्चर का सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं जब देखता हूं कि आज तक हमने इंसान के बीच ये समझ विकसित करने के लिए, ब्रदरहुड, लव, ये सब समझ विकसित करने के लिए हमने जो मार्ग चुने, उसको, उसका वायलेंस खत्म करने के लिए जो मार्ग चुने हैं, जो परस्पर में जो द्वेष है एक दूसरे के बीच, उसके लिए जो हमने जो खोज की है, उससे उसमें एक बड़ी खोज है, हमने भगवान गॉड को इजाद किया, रिलीजन्स को तैयार किया, और शायद उससे ये चेंज आ सकता है, ऐसी हमारी आशा थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने सदियों के, सेंचुरीज के इस एक्सपेरिमेंट के बाद आज हम ऐसे घड़ी पे आ गए हैं कि उन्होंने शांति तो नहीं, लेकिन और ज्यादा वायलेंस दुनिया भर में खड़ा कर दिया है, जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हम जिसे कहते हैं। तो हमें ये इस बात पे सोचना पड़ेगा। मैं आज यहाँ पे कोई भी उत्तर लेके नहीं आया हूँ आपको देने के लिए, लेकिन हाँ, मैं जरूर एक इंक्वायरी, एक डिस्कशन क्रिएट करना चाहूंगा। हमारी आज तक की जो ये नीतियां रही है, एक भाईचारा, एक प्रेम बना रहे, एक नॉन वायलेंस की तरफ हम बढ़े, इसलिए जो हमने किया है वो सब आज मुझे फेल्योर जैसा लगता है। दूसरा, हमने जो एक रास्ता अपनाया है वो है एजुकेशन का। थ्रू एजुकेशन हमने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की है कि इंसान में बदलाव आ सके, हम उसको कुछ अच्छी शिक्षा दे के उसमें चेंज कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है, जो भी हमारी शिक्षा देते हैं हम। और सडनली जो आज तक कभी, मतलब अहिंसा की बातें करने वाले लोग हैं, जस्ट कुछ थोड़ी सी घटना घट जाए और वो अब धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना जरूरी है, ऐसी बात शुरू हो जाती है, और वापस से हम वायलेंट हो जाते हैं। तो ये जो भी हमने आज तक जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स घातक साबित हुए हैं बहुत सारी मात्रा में इंसान, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ और चीजों की तरफ एक आशा की किरण की हिसाब से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा हमने जो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं इंसान के, वो हमने हमारे ही बुने हुए प्रॉब्लम्स मुझे लगते हैं कि वो अनकॉन्शियसली हमने बना लिए हैं। तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है यहाँ पे, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने सुना था कि किसी पुराने समय में किसी एक नगर में एक बहुत ही बढ़िया जो ताला बनाने वाला, ताला बनाते हैं ना वो लोग होते हैं, वैसा एक बहुत ही माहिर, एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड ताला बनाने वाला एक इंसान था। और उसने उसकी इतनी ज्यादा ख्याति थी कि वो उससे ताला खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और उसने इतना उसमें इजाद किया था ताला बनाने की प्रोसेस में कि मतलब उसने इतना पैसा कमा लिया था ताले बेच के, और उसकी ख्याति भी बहुत दूर दूर तक पहुंच गई थी। तो ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद उस राज्य पे एक राजा ने आक्रमण कर दिया, और उसने वो प्रदेश जीत लिया, और वहां के जो भी अमीर लोग थे
पैसे वाले थे उनको उन्होंने बंदी बना दिया, श्रृंखलाओं में बंदी बना के ताले लगा दिए और उनको एक अनजान वीरान जगह पे जाके वो छोड़ आए कि बस उनको जंगली जानवर खा देंगे, उनको पानी खाना कुछ नहीं मिलेगा तो वो बहुत खराब मौत मरेंगे, इसलिए उन्होंने वैसा किया था। लेकिन जो गांव के लोग थे, उस ताला बनाने वाला आदमी भी उसमें था, वो भी बहुत अमीर था, तो वो बहुत ही निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि हमारे बीच जो आदमी है वो बहुत ही माहिर ताला बनाने वाला है और वो तो आसानी से इस ताले को खोल देगा, उसके लिए ताला कुछ भी नहीं है। तो वो लोग उसके पास गए और उन्होंने कहा कि प्लीज अभी आप हम लोगों का ताले ये सब खोल दो, हमें श्रृंखलाओं से मुक्त करो। तो वो आदमी उसने ताला चेक किया ठीक से सबका जो भी हाथ पे लगा था श्रृंखला में, और जैसे उसने ताले चेक किए वो रोने लगा, वो जोर जोर से रोने लगा। बोले क्या क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि ये जो ताला है ये मेरा ही बनाया हुआ है और मैं जानता हूं दुनिया का कोई भी ताला खुल सकता है लेकिन मेरा बनाया हुआ ताला कोई भी नहीं खोल सकता। तो शायद हमने अपने आसपास कुछ ऐसे ही ताले बना दिए हैं और हम इस तरह से उसे बुनते हैं कि उसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं। तो ये प्रोसेस है जो इस तरह से हम खुद को प्रोग्राम करते हैं और खुद के दुख एक सफरिंग्स क्रिएट करते हैं और सेपरेशंस क्रिएट करते हैं। तो उसके बारे में मैं आज कुछ मैं जो इस तरह से सोचता हूँ, मुझे जो ठीक लगती है राह, उसके बारे में आज यहाँ पे कुछ मेरी बात साझा करता हूँ। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस ये जब शब्द आता है तो व्हाट इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब मनुष्य की चेतना। मनुष्य की चेतना क्या है? मनुष्य की चेतना के बारे में मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे उसमें एक चीज दिखती है, वो ये है कि मैं जब यहाँ से ट्रैवल करके कहीं यूएस जाता हूँ या और कहीं दुनिया के दूसरे छोर पे जाता हूँ या भारत में ही भ्रमण करता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि सब मनुष्य भले बाहर से वो कितने भी अलग दिखते हो, कितनी भी उनके अलग पहराव हो, उनकी भाषाएं अलग हो, उनकी मान्यताएं अलग हो, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है उनके बीइंग का, उनके साइकोलॉजी का, वो एक ही है। मतलब मनुष्य का कॉन्शियसनेस एक, हम कह सकते हैं कि एक, कहीं भी हम जाएंगे वहां पे आपको फियर वो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा फियर नहीं है, ये ऐसा कोई भी इंसान मिलता नहीं है हमें कहीं पे भी। वैसे ही जो हम कह सकते हैं कि द्वेष की भावना हो या क्रोध की भावना हो, ये बेसिक हमारी भावनाएं सब जगह पे देखने को मिलती है। ये जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है, ये इंसान और इंसान के बीच का सेपरेशन है, प्रॉब्लम्स विथ रिलेशनशिप्स, ये सभी इश्यूज हम कहीं पे भी जब घूमते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा कुछ है जो हम सब में एक जैसा है, एक कॉमन धागा है पूरी तरह से। तो ये कॉन्शियसनेस, इसका कंटेंट क्या है, ये कैसे बना है, ये थोड़ा सा हम सोचने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कॉन्शियसनेस की तरफ देखता हूं तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा विचारों का बहुत ज्यादा महत्व लगता है कि ये इसमें विचार बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आज तक के अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी भावनाएं, हमारी मान्यताएं, ये सब का इकट्ठा जोड़ करके अगर हम देखें तो एक हम कह सकते हैं कि ये मैं हूं। हमारी आइडेंटिटीज, हमारी अलग अलग तरह की मान्यता, ये सब एक करके जो बनता है इसे हम कहते हैं कि ये मैं हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा एक कॉन्शियसनेस है पूरे ह्यूमैनिटी का। और इस कॉन्शियसनेस में बदलाव लाने के लिए जो भी आज तक जो भी प्रयत्न हुए हैं वो थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि उस पर हमें सोचना चाहिए। तो इस कॉन्शियसनेस में बदलाव किस तरह से ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे बदलाव लाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमने शिक्षा दी लोगों को, भगवान का डर भी बहुत बार दिखाया जाता है उनको नैतिक बनाने के लिए। लेकिन हमारे मन में अगर हम देखें कि एक मन है
जो जो कॉन्शियस माइंड हम कह सकते हैं, फिर एक है अनकॉन्शियस जिसे कुछ भी पता नहीं ऊपर का मन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है। हम जो भी बात करते हैं, हम उठते हैं, चलते हैं, जो भी हमारे काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के हेल्प से ही करते हैं। और हमारा अनकॉन्शियस जो है, जो भी हमारा हमारा सप्रेशन है, जो दमन किए हुई चीजें है, या फिर हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट से आई हुए बहुत सारी चीजें, वो वहां पे पड़ी होती है। और वो इतना ज्यादा प्रबल है कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसके सामने हार जाता है। हम बहुत बार कुछ प्लान करते हैं या कुछ एम रखते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस उसे सक्सेस नहीं होने देता। वैसे ही एक ये चीज है कि हमारा जो भाईचारा है, प्यार है, वो शायद इसी वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कला एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपने जो निद्रिस्त मन जिसे कहते हैं, जो निद्रा में है, उस मन तक, उस गहराई तक लेके जाने की सामर्थ्य उस कला में होता है, आर्ट में होता है। तो मैं जब भी किन्हीं कलाकारों को मिलता हूँ, तो मुझे एक आशा का किरण दिखाई देता है कि कलाकार जो होते हैं, मैं जब भी बहुत घूमा हूं मैं दुनिया में या फिर भारत में भी, तो मैं तो एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। और मेरे यहाँ पे तो कुछ उस टाइम पे इंटरनेट या बहुत कुछ सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं था। और मेरा एक आर्टिस्टिक जर्नी रहा। मतलब मैं एक जो प्रोग्रामिंग होता है, सोशल प्रोग्रामिंग इंसान को, वो सब मुझ पे हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, जो हर इंसान के साथ होता है। लेकिन जैसे मैं आर्ट में इंटरेस्ट मेरा हो गया और मैं पेंटिंग बनाने लगा, तो धीरे धीरे मुझ में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगे। पहली बात तो ये कि पेंटिंग बनाना, अभी मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूं, ये बात ही अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है, ये मुझे लगने लगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि एक पागल, मतलब पेंटिंग बनाने वाला इंसान अगर हम इस दुनिया में देखें तो वो कोई एक पागल आदमी है ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि सब लोग हमारे हमारे जो पड़ोसी होते हैं या जो भी हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, कोई घड़ी के इस पे गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहा है, ट्रेन पकड़ने के लिए, उसे जॉब करने के लिए जाने का है, कोई पुलिस वाला है जो लोगों को ट्रैफिक के रूल्स बता रहा है, ये ऐसे चलो, ये मतलब हर आदमी एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। और वहां पे जब एक आर्टिस्ट आके बैठता है और वो बस एक पेड़ की तरफ देखता रहता है, घंटों देखता रहता है पेड़ और उसके रंग और पहाड़, तो वो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी को क्या हो गया है, इसको कुछ काम नहीं है, ये इतना रिलैक्स क्यों है, ये इतना आराम से क्यों बैठा, और इसमें इसे कौन सा आनंद मिला है, इसे क्या मिल गया है ऐसा कि इतना खुश लग रहा है। और पेंटिंग बनाने में ये इतना मर्ज हो गया है, खुद को भूल गया है कि कोई छोटा बच्चा है शायद इसमें, वो उन्हें दिखता है। तो जब भी मैं ये सब मैंने जब शुरू किया, तो मेरे सभी लोग, मेरे टीचर्स हो या सभी मुझे जानने वाले लोग, वो कहने लगे कि तुम गलत राह पे जा रहे हो, इससे क्या होने वाला है, इससे लाइवलीहुड हो पाएगा, तुम पैसे कमा पाओगे, अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। तो इस तरह से लोग घबराने लगे कि ये मुझे डराने लगे कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो तभी जब मेरा ये डिसीजन था कि नहीं, कि मैं ऐसे ही लाइफ जीऊंगा, मैं पेंटिंग करके ही जीऊंगा, मैं पेंट ही करता रहूंगा और मुझे जो कहना है मेरे रंगों से कैनवास के ऊपर मैं उतारता रहूंगा। तो ये मेरा एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। और उस समय मुझे ये लगा कि मैं एक रिवोल्ट या फिर एक, जिसे हम बंडखोर कहते हैं या कि क्या कह सकते हैं उसे, कि पूरे समाज के जो विचार है उसके आगे खिलाफ खड़े होने की ताकत, मतलब सब एक दिशा में जा रहे हैं और मैं अलग ही दिशा में जाना मेरा शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे खुद में एक बदलाव साइकोलॉजिकल, ये मुझे सहन करना, मतलब मुझे ये अडॉप्ट करना पड़ा खुद में कि हाँ मैं ऐसा हूं और ये लोग ऐसे इस तरह जा रहे हैं। क्योंकि जब हम आर्ट स्टार्ट करते हैं तभी कोई रिस्पेक्ट नहीं होता उस टाइम आर्ट के प्रति, क्योंकि हम भी बहुत इनिशियल स्टेज पे होते हैं, हम पेंटिंग सीखते होते हैं। तो
ये एक बदलाव मुझे उससे गुजरना पड़ा। फिर दूसरा बदलाव ये आया कि यहाँ पे तो बहुत बार ऐसा सुना गया है कि मतलब ऐसा बहुत सुनते हैं हम कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं जैसे पेंटिंग बनाने लगा, मुझे ये जो जगत है जो मेरे इर्द गिर्द है, वो मुझे इतना सौंदर्य से भरा हुआ और इतना इतना सुकून देने वाला मुझे लगा जब मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। तो मुझे इस जीवन के प्रति एक हावभाव का एक जन्म हुआ मेरे भीतर कि इतनी कृतज्ञता लगी कि मेरे पास आंखें हैं ये सौंदर्य देखने के लिए, संगीत सुनने के लिए मेरे पास कान है, मैं इन सब चीजों को जी पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरफ जब देखता था यहाँ पे, तो मुझे ये सडनली फील होता था, अरे ये लोगों को ये सब सुनाई नहीं दे रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, ये लोगों को वो सौंदर्य भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए वो मुझे पागल कह रहे हैं कि ये क्यों बैठा इस पेड़ के नीचे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक महसूस किया मैंने कि जब मेरा आर्टिस्टिक जर्नी चल रहा था। फिर वैसे ही मुझे जो खाली समय है उसका महत्व, उसका कितना महत्व है वो मुझे समझ में आने लगा। क्योंकि खाली समय उसे आज के अगर इस सेंचुरी में हम कह सकते हैं, जब बहुत ज्यादा दौड़ है, एक कंपटीशन लगी है कि कौन आगे जाता है किसकी, उस समय खाली समय मतलब बिताना कुछ भी ना करते हुए, इसका तो कुछ इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं है। लेकिन वो खाली समय कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे समझ में आने लगा जैसे मैं पेंटिंग में आगे बढ़ता गया। क्योंकि जब तक खाली समय हमारे पास ना हो तब तक हम किसी भी तरह की, जिस तरह माननीय एम्बेसडर साहब ने कहा कि जब तक आप कोई पेंटिंग, पोएट्री, संगीत पैदा नहीं कर पाते हो या उसका रस ग्रहण नहीं कर पाते हो, तब तक आप एक एनिमल की तरह हो। तो खाली समय एग्जैक्टली वो जो सिंग है ना, वो काटने के काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। वो एनिमल, सिर्फ हम एनिमल नहीं रह जाते, हम उसके ऊपर उठ जाते हैं। हम खाली समय में हमारे पास जो क्रिएटिविटी है, जो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है और खुद के प्रति जो जागना है, वो खाली समय में ही होता है। विदाउट एनी मतलब कुछ भी व्यस्तता के बगैर अगर हम व्यस्तता से बाहर निकल सके तो वो चीज हमारे भीतर पैदा होती है। उसी तरह जैसे मैं पेंटिंग करता गया तो साइकोलॉजिकल चेंजेस मैंने ये देखा कि मैं इस जगत को, जो फिजिकल वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं, और बहुत बार इसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो दुनिया है ना, अगर कोई भगवान है, कोई कुछ सुपर कुछ हो अगर चीज दुनिया में, तो वो यही है, वो यही हमारे इर्द गिर्द है। ये पेड़, ये माउंटेन्स, ये रिवर्स, ये लोग जो मुझे मिल रहे हैं, मतलब कुछ इमेजिनेटिव चीज उसके पीछे जो हमने कभी देखा नहीं है, उसके पीछे भागने के बजाय जो हमारे आसपास ही है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हम कानों से सुन सकते हैं, जो हम सेंस कर सकते हैं, वहीं पे उसकी प्रतीति हमें होने लगती है। उसे ये पेंटिंग ने, ये आर्ट ने मुझ में लाए हुए चेंज है। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया और जिस तरह मैं पेड़ों को देखता था, माउंटेन्स को देखता था, तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे इतने सारे कलर्स अभी उसमें बढ़ने लगे, मुझे दिखने लगे, हर ट्री में, हर माउंटेन में, रिवर में। क्योंकि धीरे धीरे पेंटिंग बनाते बनाते वो सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। मतलब हम ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। जिस चीज की तरफ भी हम अपना ध्यान रखें, ध्यान दें, हमारा पूरा फोकस हम जिस चीज की तरफ लगा दे, उस चीज के बारे में हमारी सेंसिटिविटीज बढ़ने लगती है। मतलब सेंसिटिविटी और थॉट, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसे समझना पड़ेगा। थॉट इज नॉट सेंसिटिविटी। एक्चुअली सेंसिटिविटी को कोई चीज अगर वो मार देती है, सेंसिटिविटी को कम कर देती है, तो वो थॉट है।
इसलिए हमें थॉट से बहुत ही अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज, कोई सौंदर्यपूर्ण चीज, सौंदर्यपूर्ण सीन, दृश्य हम देखते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं उसे, तो हमें सडनली याद आ जाता है। अगर समझ लीजिए हमने स्विट्जरलैंड में जाके वो वादियां देखी वहां की सुंदर, और तभी हमें याद आ जाता है, अरे मैंने कैलिफोर्निया में ऐसा ही कुछ देखा था। और अगर हम कैलिफोर्निया में गए घूमने के लिए, तो वहां पे हमें लगेगा मैंने इंडिया में यहाँ पे कुछ हिमाचल में इसी तरह का कुछ देखा था। तो हम जो देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, उसके साथ हम बिल्कुल भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते। हम सडनली पास्ट में चले जाते हैं। हम अपने जो ब्रेन में जो स्टोर किया हुआ जो मेमोरीज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके भीतर उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी हमने देखा है टटोलने लगते हैं, और हम उसी के कारण हम प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाते। तो मुझे आर्ट ने एक बड़ी चीज जो दी वो है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जी सकते हैं, फ्यूचर और पास्ट से बाहर निकल के। क्योंकि अगर आपको ठीक से किसी पेड़ का आकार देखना हो, किसी माउंटेन का एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कलर वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो अगर आपको समझना हो, तो आपको इतना ज्यादा कॉन्शियस और सेंसिटिव होना पड़ेगा क्या है एग्जैक्ट उसका कलर। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही पड़ेगा। आप अगर जरा भी थॉट में चले गए, आपके पास्ट में चले गए या फ्यूचर में चले गए, तो भी आप उसे देखने से वंचित हो जाओगे। तो इसलिए कला इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला भी सिखाती है जब हम पेंटिंग की तरफ आते हैं। इसी तरह सेंसिटिविटी भी बढ़ी। मेरा जीवन को जीने का पूरा तरीका पूरा चेंज हो गया। तो जब मैं इस छोटे से विलेज से निकला, मुझे लगा कि मेरे भीतर कुछ अलग चीज हुई है, बहुत ही अलग, और मैं बहुत एक रिबेल की तरह बोल सकते हैं, एक रिबेल था यहाँ पे मेरे गांव में, या मेरी सोच जिस तरह से है। और लेकिन मेरा ये भ्रम बहुत जल्दी टूट गया जब मैं मिला कहीं दूसरे जगह पे जाके किसी आर्टिस्ट से, पेंटर से। जब अमेरिका गया वहां पे भी जब मैं आर्टिस्ट लोगों से मिला और दूसरे कंट्रीज में मिला, तो मुझे ये फील हुआ ये लोग भी वहां पे ही पहुंच गए जहां पे मैं पहुंच गया। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं और खुद को देख रहा हूं। इतना ज्यादा सिमिलैरिटी मैंने देखी लोगों के बीच। और आर्टिस्ट लोग, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन 90% आर्टिस्ट, ये बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बड़ा आंकड़ा है 90%। तो इन लोगों की ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि एक एम्बिशियसनेस, वो एम्बिशियसनेस आर्टिस्ट लोगों में आपको बहुत मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा। क्योंकि रंगों के साथ खेल के, कागज के ऊपर, कैनवस के ऊपर कुछ रंग डाल के, कुछ बना के क्या हासिल कर लेगा आदमी? कर करके क्या हासिल कर लेगा? और मतलब जो भी दूसरे लोग हैं जो एम्बिशन में, जो पावर, प्रेस्टीज, किसी पोस्ट के लिए जो भी लोग जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, तो उनकी दुनिया में अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट लोग तो मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं है। उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनके पास वो एम्बिशियस माइंड नहीं है। उनके पास जो महत्वाकांक्षा हम कहते हैं, उस तरह का कोई भी अंदर उसका डेवलपमेंट नहीं। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं आर्टिस्ट लोग। क्योंकि कोई भी क्रिएटिविटी, जब भी आप आर्ट निर्मित करते हो, तब आपको पीस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। शांति, और किसी भी तरह का इनसिक्योर फीलिंग नहीं चाहते। इसीलिए जब भी कोई वॉर्स होते हैं, कोई झगड़ा होएगा, कहीं पे कोई वायलेंस होगा, तो आपको ये दिखेगा कि आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो जिस तरह खड़ी होती है उस टाइम पे, कि वो वॉर के अगेंस्ट, किसी भी वायलेंस के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। मतलब उन लोगों को, इसीलिए तो वो आर्टिस्ट बन सके, क्योंकि वो लोग इस सब के अगेंस्ट खड़े रहने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर
आर्टिस्ट कम्युनिटी, मतलब एक होल यूनिवर्सल अगर हम सोचे कि सभी, मैंने जब यूएसबी में था तब मैंने देखा कि आर्टिस्ट लोगों को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये कोई सेपरेट इंसान है मुझसे, ये कोई अलग देश से आया है। वो इतनी तरह इस तरह से घुल मिल जाते हैं, और अपना मुझे भी उन्होंने अपना लिया था कि मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि मतलब एक इतना छोटे से विलेज से जाकर के उन लोगों ने जिस तरह से मुझे अपना लिया वहां पे, तो ये शायद एक आर्टिस्ट कम्युनिटी कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो वाइडनेस होता है। द नेक्स्ट थिंग मैं कहूंगा कि फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, क्योंकि अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आपको फ्रीडम ऑफ थिंकिंग की बहुत बड़ी जरूरत होती है, उसके बगैर आप कुछ नया निर्माण ही नहीं कर सकते। तो मैं ये इसके ऊपर एक थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, बहुत बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातें की जाती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि जिन लोगों को फ्रीडम ऑफ थिंकिंग का उन्होंने टेस्ट नहीं किया है वो फ्रीडम, उन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई भी मीनिंग नहीं है उनके लिए। जैसे कोई पंछी हो जो पिंजरे में बंद हो, तो उसके लिए वो जो आकाश में उड़ना है वो मायने कुछ भी नहीं रखता, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। या मतलब जिन्हें पंख ही ना हो, समझ लो, तो वो कैसे आकाश में उड़ने की आशा भी करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एक तरह के पंख है। और ये फ्रीडम ऑफ थिंकिंग किस तरह रिस्ट्रिक्ट होती है, एक्चुअली हमारा फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हम कैसे गवा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि हम, जो मैंने कहा कि हम जो अपनी आइडेंटिटीज बना लेते हैं कि मैं कौन हूं, मैं पराग हूं, मैं एक मेल हूं, मैं इंडियन हूं, या फिर मैं एक कोई रिलीजन से बिलोंग करता हूं और क्या हूं, ये सब जो आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज मेरे इर्द गिर्द बाउंड्रीज खड़ी कर देती है, दीवारें खड़ी कर देती है कि मैं उसके बाहर जाके सोच ही नहीं पाता जो मैं हूं, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बाहर जाके सोचना, क्योंकि हमारा जो भी थिंकिंग प्रोसेस चलता है वो वहां पे जाके वो रिटर्न आ जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम, क्योंकि ये मेरा होना है। द आइडेंटिटीज वी एक्सेप्ट, वी बिकम दैट, वो हमारा होना हो जाता है। लेकिन अगर हम ठीक से अवेयरनेस से उन आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व कर सके, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आइडेंटिटी को आपको निगेट करना है, छोड़ दे, मतलब उसको ये गलत है करके छोड़ देना, नहीं। जो इंडियन सीयर्स है, जो लोग इंडियन जो देखने वाले हैं, जो इंडियन फिलोसॉफी ऐसा नहीं कहा जाता, वहां दर्शन कहा जाता है, देखना इस तरह से कहा जाता है। तो वो जो देखने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज को सप्रेस मत करो, उसके प्रति निगेटिव भाव मत रखो, उसके प्रति तटस्थ भाव रखो और उसे ऑब्जर्व करो तटस्थ आधार। तो जब हम तटस्थ होके एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह हम जब अपनी आइडेंटिटीज को देखते हैं, वो जो श्रृंखला है ना, जो लॉक्स, जो ताले बना लिए हमने, उनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक से, तो एक ग्रेटेस्ट मिरेकल दुनिया का होता है कि जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम नहीं रह जाते। हम जिसको भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, जिस चीज को, हम उससे अलग हो जाएंगे। मतलब हम जैसे ही अपने आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये मैंने अपना आइडेंटिटी बनाया है, ये मैंने आइडेंटिटी, तो वैसे ही वो डिसअपियर होने लगता है और हम आइडेंटिटी से मुक्त होने लगते हैं। इसके लिए चेतना, सजग चेतना, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस तरह से इन चीजों की तरफ देख सके तो हम वो आइडेंटिटी से भी मुक्त हो सकेंगे। और जैसे ही हम इस तरह से वो मैं जो है उससे हम एक बार मुक्त हो सके तो हम एक फ्री थिंकर बन सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं फ्रीली। और मुझे लगता है तभी हम प्यार भी कर सकते हैं जब हम उस मैं से मुक्त हो सकेंगे। तो मुझे मेरे पेंटिंग है, मैं जैसे ही मेरे आर्ट को अप्रोच करता गया, परस्यू करता गया, तो मुझे उसने ये भी चीज एक सिखाई कि फ्रीडम ऑफ थिंकिंग के लिए क्या चीजें चाहिए। अगर मैं एक इंडियन के हिसाब से या एक आयरिश के हिसाब से मैं सोचूंगा तो मुझे चीजें बहुत अलग दिखाई देने लगेंगी।
एक मेल बन के सोचूंगा तो मैं फीमेल के बारे में ठीक से न्याय नहीं कर पाऊंगा, मैं सोच भी नहीं पाऊंगा उनके इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगर मुझे इंसान की प्रॉब्लम को समझना है, पूरी ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम को, तो मुझे मेरे पास फ्रीडम ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि आर्ट, पेंटिंग जो है वो इंसान में समझ में भी नहीं आता कि कब ये सब चीजें हमारे भीतर विकसित हो गई। और सबसे बढ़िया चीज आर्ट में जो है वो जो मैंने कहा कि आपको अनकॉन्शियस तक लेके जाने की एक पावर उसमें है। मतलब जब शुरू करते हैं, कोई भी कोई भी सिंगर हो, कोई भी पेंटर हो, पोएट हो, ऐसा कहते हैं कि रविंद्रनाथ जब पोएट्री लिखते थे तो एक कमरे में खुद को बंद कर लेते थे और 2-2 3-3 दिन बाहर नहीं निकलते। मैं बड़े बड़े सिंगर्स को भी मैंने देखा है, जब वो गाते हैं 1 घंटे के बाद उनके चेहरे को सिर्फ देखना, अगर हम देखेंगे तो एक ट्रांस में वो चले गए हैं ऐसा लगने लगता है। वैसे ही जब कोई पेंटर अपना पेंटिंग बनाता है तो एग्जैक्टली वही स्टेज पे पहुंच जाता है थोड़ी देर के बाद। उसका जो ब्रश है वो बिल्कुल भी सोच के प्लान करके वो चलता नहीं, वो ऐसा लगता है कि कोई कोई एक एनर्जी है जो मुझसे वो करवा रही है, मैं जस्ट एक मीडियम बन गया हूं और चीजें घटना शुरू हो गई है। क्योंकि जब मैं पेंट करता था कॉन्शियसली, तब मुझे एक बात मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो नेचर होता है, निसर्ग। तो नेचर की तरफ मैं जब भी देखता था तो मैं वहां पे हमेशा सोचता था, मैं जब बच्चा था तो वहां पे हमारे यहाँ पे एक बहुत इंडिया में एक गाना फेमस था, ये कौन है चित्रकार, ये कौन है चित्रकार है। तो मैं जब भी नेचर की तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि मैंने चित्रकार तो बहुत देखे हैं, पेंटर्स, लेकिन ये कौन चित्रकार है जो ये चित्र बना रहा है। तो मैं जब उसके बारे में सोचने लगा तो मुझे ये दिखाई देने लगा कि ये पेंटिंग मेरे लिए आइडल या मेरा आदर्श इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डूअर नहीं है, यहाँ पे कोई भी करने वाला नहीं है, ये चीजें घट रही है, यहाँ पे चीजें हो रही है, यहाँ पे उसके पीछे कोई भी थॉट नहीं है, कोई सोच नहीं है, चीजें हो रही है। और उसी वजह से वो इस तरह का एक उत्सवपूर्ण जो निसर्ग को हम देखे, सुबह होती है, शाम होती है, अलग अलग सीजन चेंज होते हैं और एक उत्सव चलता है वहां पे, पंछियों का गाना होता है। तो ये उत्सव किस वजह से? तो वहां पे कोई करने वाला नहीं, तो इसीलिए वो इतना स्पॉन्टेनियस है, इतना इतना ग्रेसफुल है और इतना ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी का जब हम उसका जो कोर है वो जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये दिखाई दिया कि द स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी इज द एब्सेंस ऑफ आई, द मी, द ईगो। मतलब नेचर में जब भी मैं देखता हूं, मैं खोजता हूं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि नेचर में कोई भी थॉट नहीं, ईगो नहीं, कोई करने वाला नहीं है। वहां पे वो आई, जिसे मैं कहता हूं मैं, वो मैं है ही नहीं। पेड़ अपनी छांव देता है, नदी पानी देती, या बरसात के बादल इतना बारिश करते हैं, सूरज हमें रोशनी देता है, एक जीवन ही देता है हमें, लेकिन कभी भी कोई कहने को नहीं आता मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक स्टोरी मुझे याद आई अभी कि ऐसा कहते हैं कि जो सूरज है और जो एक उजाला है और अंधेरा है, उनके बीच एक बार एक बड़ा केस कोर्ट में आ गया था। मतलब अंधेरे ने जाके उजाले के ऊपर एक केस कर दिया था, सूरज के ऊपर केस कर दिया था कि ये जो सूरज है मेरा पीछा करता रहता है और मुझे चैन से जीने नहीं देता। तो भगवान से कहा कि आप प्लीज सूरज को समझा दो कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो सूरज ने कहा तो कि मुझे तो कोई मालूम भी नहीं है कि अंधेरे के जैसा कोई इंसान भी है, कोई चीज भी है, मैं तो अपना अपना घूमता रहता हूँ और मुझे पता भी नहीं, फिर भी मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। तो शायद ये जो
जो हमारा होना है वो इसी तरह का है कि हम एक अंधेरे इसमें अपनी चेतना की ये लेके जाएंगे, अपनी ज्योत लेके जाएंगे और उसको तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्ट ने मुझे किस तरह से एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे भीतर जो बदलाव लाए, साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आर्ट की वजह से हुए हैं, कि हमारा जो ईगो है, मैं ईगो के बारे में कह रहा था, कि मैं के बारे में कह रहा था, कि हमारा जो ये मैं है वो हमें वो अंधेरे के तरह है, और जो हमारी जो चेतना है वो सूरज की तरह है। और एक्चुअली ये मैं के वजह से ही हम बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। तो ये जो अकर्ता भाव है, जो नॉन डूइंग है, जो नॉन डूअरनेस है, वो क्या है, वो मुझे पेंटिंग की वजह से ही पता चला। क्योंकि मैं जैसे पेंट करता रहा, काम करता रहा, तो मुझे वो क्रिएटिव प्रोसेस समझने के लिए कि मैं मेरे पेंटिंग को नेचर का जो क्रिएशन है, अगर मुझे उस लेवल पे मेरे पेंटिंग को लेके जाना है जिस तरह नेचर क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्ट जो क्रिएटिव प्रोसेस है नेचर में जो चल रहा है उसे समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं भी अपने पेंटिंग करते समय फिर मैंने वहां से वो प्लानिंग या वो सोच या वो जो कॉन्शियस माइंड है उसको किस तरह से मैं मिटा सकता हूँ, वहां से मैं किस तरह से मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ, इस बारे में सोच शुरू हो गई मेरे भीतर। और मैं उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि पेंटिंग एक बीज की तरह कह सकते हैं जो मेरे लाइफ में आया, और मैं जैसे पेंट करता गया वैसे वैसे उसका वृक्ष होता गया बड़ा बड़ा। मतलब पेंटिंग एक छोटा सा एक कला का एक छोटी सी हम एक ये कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, लेकिन उसने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग तक पहुंचा दिया, मतलब जीवन जीने की कला। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा हमारा जो पेंटिंग है वो हमारे कॉन्शियसनेस में बदलाव नहीं लाता है, तब तक हम आर्टिस्ट नहीं है ठीक से। क्योंकि अगर मैं कोई अवार्ड मुझे चाहिए बहुत बड़ा, और वो अवार्ड पाने के लिए मैं पेंट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही मायने में आर्टिस्ट नहीं हूँ। या फिर मैं कोई बहुत बड़ा मुझे बहुत फेमस आर्टिस्ट बनना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है, इसलिए भी अगर मैं पेंट कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि आई एम नॉट द आर्टिस्ट देन, मैं ठीक से आर्टिस्ट नहीं बन पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट बनने के प्रोसेस में ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसका बदलाव, उसमें रिवॉल्यूशन, ये इतना बड़ा इतना महत्वपूर्ण चीज है जो एक्चुअली हमारे एक्टिविटी को आर्ट में चेंज कर देता है। इसीलिए आर्ट के बारे में मैं जब ये कहूंगा कि मैं किसी भी वर्क को, किसी भी एक्टिविटी को आर्ट तब मानता हूं जब उसमें वो करने वाला जो है, जो आर्टिस्ट है, वो डिसअपियर हो जाए, वो वहां से पूरा नष्ट हो जाए। मतलब मैं शरीर तौर पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड वो ना हो जाए वहां पे, तभी पेंटिंग एक अच्छा पेंटिंग जन्म सकता है। तो मैं इसके आगे ये कहना चाहूंगा कि आर्ट के प्रति, मतलब आर्ट के प्रति जो मेरी समझ है अभी, तो मैं ये कर रहा हूं कि अभी मैं एक प्रोसेस में हूं, और मैं और एज एन आर्टिस्ट साइकोलॉजिकली एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरह मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से मैं और ज्यादा उसमें उस कॉन्शियसनेस के करीब कैसे पहुंच सकता हूँ। तो वैसे ही ये पेंटिंग करते करते देखने की कला, द आर्ट ऑफ सीइंग, वो जैसे मैं समझ गया, तो वहीं पे जब हम एक को समझ जाते तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। वैसे ही मुझे सुनने की कला भी समझ में आ गई, क्योंकि देखने की कला और सुनने की कला बहुत अलग नहीं। मतलब हमें ऐसा लगेगा बहुत सारे लोगों को कि देखना जो है, देखने की कला, और मतलब इसमें कला की क्या बात है, हम सभी लोग तो देख रहे हैं आपस में। लेकिन मैं हमेशा जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बातें रखता हूँ कि मुझे लगता है कि आंखें होने से हम देख नहीं सकते,
आंखें होकर भी हम अंधे होते हैं बहुत बार। तो ये देखने की कला क्या है? देखना किसी चीज की तरफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ना पास्ट से ना फ्यूचर से, प्रेजेंट मोमेंट में रह करके और पूरी संवेदनाओं के साथ हमारे इंद्रियों को जागृत करके पूरी तरह से हम उस चीज के प्रति जो देख रहे हैं उसके प्रति हम जागृत रह सकते हैं क्या और उसे देख सकते हैं क्या। मतलब वापिस वही है कि थॉट वहां पे बिल्कुल ना हो, कोई भी विचार ना हो। कला को बहुत लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें पेंटिंग समझ में नहीं आता कभी कभी, और कुछ पेंटिंग समझ में आते हैं। तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि आपको ऐसा कभी हुआ है कि आपको गुलाब का फूल समझ में आ गया और आपको मोगरे का फूल समझ में नहीं आया? ऐसा होता है कभी? तो वो कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं करते उन्हें, हम उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं। तो मैं कहता हूँ फिर मेरे पेंटिंग के साथ आप क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? क्यों समझने के उलझन में पड़े हुए हो आप? प्लीज मेरे पेंटिंग को भी उस फूल की तरह ही देखो, उसे भी महसूस करो, उसे अनुभव के स्तर पे देखो, तो आप समझ पाओगे। तो ये है देखने की कला। एग्जैक्टली सुनने की कला यही है। अगर हम सुनने की कला इसी तरह उसकी तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि हम जब सुनते हैं तब हम बीच में, जब भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारे विचार उसी समय हमारे अंदर चलते होंगे। तो इस वजह से जो सामने का व्यक्ति जो भी कह रहा है वो हम सुन ही नहीं पाते, और हमारी निर्णय लेने की बहुत ज्यादा एक नेचर हो गया होता है कि हम हर चीज पे जजमेंटल होते रहते हैं। तो उस वजह से हम जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाते। तो ये आर्ट ने, पेंटिंग ने जैसे मुझे देखने की कला दी, वैसे ही सुनने की कला भी मेरे भीतर में समझ पाया कि मुझे इस तरह सुनना है। अगर मुझे कुछ भी, मैं कोई भी लेक्चर सुनता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ, तो मैं इस तरह से सुनता हूँ कि बस मुझे बस सुनना है, कोई भी निर्णय नहीं करना है, कोई भी विचार उस समय पे नहीं करना है, पूरा अटेंशन देखिए। अटेंशन एक बहुत अलग चीज है जो इंसानों के पास है। इसी वजह से जिसे हम लिसनिंग और हियरिंग, जो फर्क वो यही है, जो जानवर है, एनिमल है, वो हियरिंग पे रहते हैं और इंसान लिसनिंग पे आते हैं। तो राइट लिसनिंग और फिर राइट लिसनिंग, अगर हम सम्यक श्रवण जिसे हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में कहा गया है, तो अगर हम उस तरह से देख सके, तो हम उस तरह से सुन सके, तो हम एक रिवॉल्यूशन, भीतर का रिवॉल्यूशन हमारे भीतर आएगा। तो मैं कहूंगा कि मेरे भीतर पेंटिंग ने एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो रिवॉल्यूशन खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, वो रिवॉल्यूशन अभी भी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक छोटी सी कहानी कहूंगा इस मेरे लेक्चर की समाप्ति करने की ओर मैं बढ़ता हूँ, और एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो पूरे कला का, आर्ट का एक इसेंस आप तक पहुंचा सकेगी, जो मेरा आर्ट के प्रति जो मेरी समझ है वो पहुंचा सकेगी शायद। तो मैं वो कहानी आपसे शेयर करता हूँ कि बादशाह अकबर के दरबार की ये कहानी है। उनके बादशाह अकबर तो बहुत ही उनको गाने का शौक था, उन्हें पेंटिंग्स का शौक था, वो बहुत ही आर्ट लवर किस्म के इंसान थे। तो उनके दरबार में अच्छे अच्छे सब आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े सिंगर्स थे। तो एक बहुत बड़ा सिंगर उनके पास था नवरत्नों में, उनका नाम था तानसेन। तो तानसेन और अकबर की स्टोरी है। अकबर इतना ज्यादा प्यार करता था तानसेन से, उसकी गायकी से, कि वो एक बार उसने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम इतना बढ़िया गाते हो कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि पास्ट में या फ्यूचर में कोई भी तुम्हारे जितना बढ़िया गाने वाला पैदा हो सकेगा फ्यूचर में, या कभी हुआ होगा। इट्स इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन बाद में मेरे मन में ख्याल उठता है कि लेकिन तुमने तानसेन कहीं से सीखा तो होगा गाना जरूर, तो क्या तुम्हारा कोई गुरु भी है? तो तानसेन ने कहा हाँ, मेरे गुरु है। उन्होंने कहा कि क्या वो जिंदा है अभी? उन्होंने कहा हाँ, वो जिंदा है। वैसे ही वो गुस्सा हो गए तानसेन पे कि इतना समय गुजर गया और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे गुरु जिंदा है। उनका नाम था स्वामी हरिदास। तो उन्होंने कहा कि आपने आपके गुरु को बुलाओ, भेजो, मैं पूरा सब इंतजाम करता हूँ, मेरे उनको इनविटेशन भेजना, और प्लीज उनको दरबार में लेके आओ,
हम उनका बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आदरातिथ्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनका गाना सुनेंगे, तो उनको अच्छा पैसा भी देंगे। तो तानसेन ने कहा कि महाराज, मेरे गुरु थोड़े अलग किस्म के इंसान है, वो कहीं जाते नहीं, किसी के लिए गाते नहीं, और पैसे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं गाते। और दूसरी बात, वो कहाँ पे रहते हैं उसका ठिकाना भी कोई नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं, और कहाँ पहाड़ियों में, वो ऐसे नॉर्मल शहरों में नहीं रहते। वो कहाँ होंगे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर हम उनको तो बुला नहीं पाएंगे, लेकिन वो जहां भी रहेंगे हमें वहां जाना पड़ेगा उनका गाना सुनने के लिए। तो उसने ढूंढ लिया अपने गुरु को कुछ ही दिनों में कि कहाँ पे वो है, और उन्होंने कहा अकबर, बादशाह अकबर से कि एक नदी है, रिवर बैंक है, उसके वो सूखा हुआ उसका पूरा वो पात्र है, और वहां पे वो रह रहे हैं, और मॉर्निंग को 4 बजे वो गाना शुरू करते हैं, और 4 से 6 बजे तक वो गाना गाते हैं। तो हमें वहां पे जाके छुप के गाना सुनना पड़ेगा, उनको समझ में भी नहीं आना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक बादशाह, एक ऐसा कहते हैं कि झाड़ी के पीछे वो बैठ गए, वो लोग दबक के रात के समय 4 बजे पूरा अंधेरा था, और वो हरिदास जी ने गाना शुरू किया, उनके गुरु ने, और 2 घंटा वो गाते रहे। और 2 घंटे के बाद जैसे ही गाना खत्म हुआ, अकबर और तानसेन उसी अंधेरे में, 6 बजे थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, वो घर की तरफ जाने लगे अपने रथ पे से, और थोड़ा उजाला भी होने लगा धीरे धीरे धीरे। दोनों भी पूरे गहन मौन में पहुंच गए थे, एक चुप्पी उनके भीतर हो गई थी दोनों के अंदर। इतना उनका गाना ही इतना ग्रेट था कि वो चुप्पी आ जाती वो गाना सुनने के बाद। वो गहरे मौन में जा रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा उजाला हो रहा है, दरबार अपने जो महल था उसके करीब वो आ गए हैं, और तानसेन ने अकबर की तरफ देखा तो उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, टीयर्स आ रहे हैं पूरी तरह से। तो उसने कहा कि महाराज क्या हो गया, आप रो रहे हो? अकबर ने कहा उनका गाना ही ऐसा था कि मैं रोक नहीं पाया इन मेरे टीयर्स को। और तानसेन, अब मैं ये कह सकता हूं कि तानसेन, तुम अपने गुरु के पैर की धूल भी नहीं हो। मतलब अभी वही अकबर ये कह रहा है तानसेन से कि तुम उनके, अपने गुरु के, हरिदास के पैरों की, चरणों की धूल भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ तानसेन, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों दोनों में? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो ये जो जवाब है इसके ऊपर जो तानसेन ने दिया, वो इस स्टोरी का इसेंस है। तो तानसेन ने कहा कि महाराज, उनको आनंद मिल गया है, उनको शांति मिल गई है, इसलिए वो गाते हैं, और मैं आनंद मिलना चाहिए इसलिए गाता हूं। तो कला को मैं इस स्तर पे मैं लेके जाना चाहूंगा कि कला, हमारे जीवन जीने की कला से पेंटिंग जन्म ले, म्यूजिक जन्म ले, हमारे जॉय से, हमारे सफरिंग के एंड करने से, हमारे विचार शून्यता से, हमारे नथिंगनेस से एक पेंटिंग जन्म ले, एक म्यूजिक जन्म ले, तो शायद फिर जो आर्ट बनेगी, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वो सही मायनों में उस लेवल तक पहुंच सकेगी। और फिर हमें जो ब्रदरहुड है या जो प्यार है, उसके लिए कुछ भी बातें नहीं करनी पड़ेंगी, या वो हो जाएगा, वो चीज सही मायने में इस जगत में प्रकट हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमने अलग अलग उपाय किए इंसान में, धर्म हो, जाति हो, प्रदेश हो, देश हो, अलग अलग ये सब जो जो चीजें हैं, गॉड हो या एजुकेशन हो, ये सब तो मुझे सक्सेस हुआ दिखाई नहीं देता है इंसान में बदलाव लाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है शायद एक तुलिका, कुछ रंग, कोई बांसुरी या कोई सितार, वो रिवॉल्यूशन कर जाएगी अगले आने वाले समय में, अगर हम कला की तरफ उस आशा की किरण से देख सके।
बस यही कहकर मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और मैं वापस एक बार, मुझे इतने शांति से आप लोगों ने सुना और मेरी बात को रखने का यहाँ पे मुझे मौका दिया, तो बस मैं ये कहूंगा कि मैंने कुछ आंसर्स नहीं रखे, या ये मेरे कुछ बिलीव्स नहीं है। इसके ऊपर सोचे, और सोच के गलत लगा तो छोड़ दे, लेकिन एक सोच शुरू हो, आर्ट के प्रति हम इस तरह से जागरूक हो सकते हैं क्या, इस तरह से उसे एक ह्यूमन रिवॉल्यूशन कॉन्शियसनेस में लाने के तरीके से उसे देख सकते हैं क्या, इसलिए मैंने ये कुछ बातें कही। सो अगेन थैंक यू ऑनरेबल एम्बेसडर सर, थैंक यू सो मच। पराग जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेजेंटेशन इतना सारगर्भी रहा है कि मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी और कलाकार से मिला हूँ जो कि केवल पेंटिंग ही नहीं करता है, बल्कि इतना गंभीर दार्शनिक है, इतना गंभीर चिंतक है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और लगभग हर वाक्य में आपके हर वाक्य में नोट कर रहा था आपके सारे पॉइंट्स। तो हर वाक्य में कुछ कुछ जो हमारे जो देवी ऋषि रहे हैं, ऋषि मुनि, तो उपनिषदों के लगभग हर वाक्य से आपके मैं कुछ कुछ उनके जो संदेश है उसको मैं जोड़ पा रहा हूँ। और मुझे पता नहीं कि आपने कितना उस तरह का अध्ययन किया होगा संस्कृत का और उपनिषदों का, वेदों का, लेकिन आप जो जी रहे हैं और जो कुछ आपने अपने अनुभव से कितना स्वतः स्फूर्त जो अव्यक्त है भाव है वो आपने व्यक्त किए, मैं समझता हूँ। तो लेकिन वो कितनी गंभीरता से, कितनी गहराई से निकले हैं, उसमें वो दार्शनिकता है। मैं अभी तक मैं दिल्ली में था तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का डायरेक्टर जनरल था, और उस लिहाज से मैं बहुत सारे कलाकारों से मिलता था, साहित्यकारों से और कल्चरल पर्सनालिटी से मिलता था। लेकिन आपसे मिलके और आपको सुन के तो मैं एकदम हतप्रभ हूँ कि कितना गंभीर है आपका अनुभव, और जो दर्शन है उसके पीछे वो, उसमें कितनी शक्ति है, और जो मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, कितने प्रेरणादायी आपके वक्तव्य रहे हैं आज। मैं तो बहुत हृदय से आभारी हूँ, और उम्र में मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन बहुत सीखने का मौका मुझे मिला आज। जीवन के विषय में जो आपने जो अपने अनुभव दिए हैं वो सबके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत सांदर्भिक है। थैंक यू सो मच सर।